So now what is in method of multipliers? So our equation will be in the same form. What we have seen, that capital P plus Q is equal to R. Okay. Now that is, this form is known as Lagrange's linear equation. Lagrange's linear equation. Okay. And we find its auxiliary equation. So its auxiliary equation is means what? We write this equation in the form dx upon capital P equal to dy upon capital Q and equal to dz upon capital R. So now what is meant by method of multipliers? Okay. So very first we the equation will be given in the form of P plus QQ equal to R, and its next step will be we write in the standard auxiliary equation. That equation will be converted into auxiliary equation in this way: dx upon P equal to dy upon Q equal to dz upon R. ठीक है. अभी हम इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशंस हम उसमें करेंगे. हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा, एक तो कांस्टेंट को हम उसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो लेट सम स्मॉल l, small m and small n may be constants, depend on the equation, may be constants or functions of x, y, z, or functions of x, y and z. Not necessary all three. कभी कभी डिपेंड करेगा वो इक्वेशन पे कि हमको किस टाइप के कांस्टेंट की जरूरत है या फिर फंक्शन की जरूरत है. ठीक है. देन वी हैव so our equation is dx upon P, dy upon Q and dz अपॉन R. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लायर्स का यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज मल्टीप्लायर्स, एंड दिस मल्टीप्लायर्स आई हैव टेकन हियर स्मॉल l, m एंड n. ठीक है. तो मल्टीप्लायर्स का यूज कैसे करेंगे? तो इस मल्टीप्लायर का यूज करना है लाइक l इंटू डी एक्स प्लस m इंटू डी वाई प्लस n इंटू डी जेड अपॉन ऊपर में मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा. सो l इंटू कैपिटल P प्लस m इंटू कैपिटल Q प्लस n इंटू कैपिटल R. There must be equal sign. Now, how to choose this LMN? How to choose this LMN? So this L, M and N are chosen in such a way that this LP plus MQ plus NR must be equal to 0. In this way, we have to choose the small l, m and n so that the sum is equal to 0. And hence we can compare our this numerator, this ldx plus mdy plus ndz equal to 0, and in this way we will get one solution. एक सॉल्यूशन मिलेगा. इसको, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. we will solve this differential equation and we get one solution u equal to c1.
u इक्वल टू C1। सो हमने एक बार एक सेट हमने यूज किया है LMN का, दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमको फिर से ऐसे ही अलग मल्टीप्लायर्स लगेंगे, ठीक है। सो लेट दिस L1, M1 and N1 be the different set of multipliers, be the different set of multipliers। और इसे भी हम वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वन को अप्लाई किया था, LMN को अप्लाई किया था, इसे भी वैसे ही सिलेक्ट भी वैसे ही करेंगे, अप्लाई भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, इन द सेम वे। और इसको जब सॉल्व करेंगे हमको एक दूसरा और इक्वेशन मिलेगा, लाइक L1 dx प्लस M1 dy एंड प्लस N1 dz इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे, so on solving we get second solution, on solving we get second solution, v is equal to some C2। और यही हमको चाहिए। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ f of uv इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो हो गई मेथड शायद उतनी आपको क्लियर ना हो, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें कौन से कैसे मल्टीप्लायर्स हमने यूज किए हैं वो देखेंगे। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आप हमेशा एक ही टाइप के मल्टीप्लायर्स यूज करो। इफ यू यूज डिफरेंट मल्टीप्लायर्स यू विल गेट डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के मल्टीप्लायर यू हैव टू यूज देयर, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 9, example number 9, solve mz minus ny dou z by dou x plus nx minus lz into dou z by dou y and equal to ly minus mx। ध्यान से देखो, ठीक है, सॉल्यूशन। सो instead of this dou z by dou x, we can write this small p, dou z by dou y is equal to small q। So if we write this equation in the standard form, mz minus ny into small p plus nx minus lz into small q equal to ly minus mx। And now this equation is converted into the form pp plus qq equal to r। Similarly, compare the values of capital P. What is capital P? Mz minus, sorry, ny. Ny, capital Q, nx minus lz, and capital R is ly minus mx। Understood? I hope it is clear to all। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। Now it's auxiliary equation. How to write auxiliary equation? Auxiliary equation is what? Dx upon P, dy upon Q, and dz upon R। So its auxiliary equation I have got here, dx upon mx, sorry, mz minus ny equal to dy upon nx minus lz equal to dz upon ly minus mx। So first step, first set of multiplier I use here, first
set of multiplier I use x, y and z. Means instead of L, x, m, y and n equal to z. ठीक है, तो ये सबसे पहला सेट ऑफ मल्टीप्लायर हम यूज करने वाले हैं एक्स वाई जेड. तो हमारा जो इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगा? सो डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स. और इस फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर को यूज करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बनने वाला है दैट विल बी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन यहाँ पे ये एम जेड एक्स माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई and minus LZY. लास्ट Z से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस LYZ and minus last is what? MZX. So all these are cancelled here, you can see, and this becomes 0, and therefore we get here to write each fraction equal to यहाँ पे इम्प्लाई नहीं करना, यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं, each fraction equal to. ठीक है, and we get here 0, और इसलिए now we can compare this numerator also with 0. X dx plus y dy plus z dz equal to 0. And now here you can see that simply we solve this differential equation. सारे टर्म सेपरेटेड है, x की टर्म x के साथ है, y की टर्म y के साथ है, z की टर्म z के साथ है. तो सिंपली ऑन इंटीग्रेटिंग what we get? Integration of x dx plus integration of y dy plus integration of z dz equal to some constant of integration c1. It is very important, don't forget it. So it's the c1, instead of c1 I take c1 by 2. Why? Because here I'm going to I will get x square by 2. No, integration of x is x square by 2, integration of y is y square by 2, and integration of z is z square by 2 is equal to c1 by 2. And now this, you can cancel this 2 from both sides by taking common 1 by 2, and we get x square plus y square plus z square equal to c1. अगर आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ तो ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आपका ये यही अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो सिर्फ मल्टीप्लायर्स पूछ सकते हैं, ओनली मल्टीप्लायर्स, दैट व्हाट आर द फॉलोइंग सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस. या फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन दे दिया और उसका सॉल्यूशन पूछ लिया. ठीक है, नाउ वी फाइंड नेक्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो सेट ऑफ मल्टीप्लायर है वो एक तो कांस्टेंट है होगा, एक तो आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं, या फिर वो होगा फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड. मतलब आप कोई भी एक्स की टर्म, कोई भी वाई की टर्म, कोई भी जेड की टर्म आप यूज कर सकते हैं वहां पे. नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स आई एम गोइंग टू टेक हियर इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट. ठीक है, सो फॉर सेकंड सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे here I take using L, M and N.
अब वो ये ऊपर वाले एलिमेंट नहीं है, हाँ, ठीक है। अब इक्वेशन में ही एलिमेंट है, इसलिए मैं वहां पे एलिमेंट ये मल्टीप्लायर यूज कर रही हूँ, ठीक है। यूजिंग एल एम एन एज अ मल्टीप्लायर, as the set of multiplier, as the set of multiplier, और देखते हैं कि each fraction equal to, each fraction equal to, हमारा जो इक्वेशन था dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz अपॉन में लिख लेना है, क्या है, mz, mz माइनस ny, देन nx माइनस lz and ly minus mx, and after using lmn as the set of multiplier, हमारा जो इक्वेशन है वो कैसे कैसे फॉर्म हो जाएगा, l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन, नीचे वाली टर्म लिखेंगे, l से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा l m z माइनस l n y, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो प्लस एम एन एक्स माइनस एल जेड एम, ठीक है। और लास्ट को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एन एल वाई माइनस एम एक्स एन, ठीक है। देखो तो सारे के सारे कैंसिल हो रहे, क्या ये कैंसिल हो गया, एन एल वाई ये कैंसिल हो गया, एंड दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड, मीन्स हियर this in this denominator it is 0, and therefore we compare this lx ldx plus mdy plus ndz equal to 0, and obviously this l m n are constants, so what will be its differentiation, so integration on integrating, integration L बाहर, integration of dx, m बाहर, integration of dy plus n बाहर, integration of dz equal to some constant c2, ठीक है। और यहाँ पे lx plus my plus nz equal to c2. This is my second solution. This is my second solution, and combining these two solutions, solution 1 and solution 2, the final solution of equation, the final solution of equation given partial differential of given partial differential equation, ठीक है, equation is what, f of u v equal to 0, no, so f of u was x square plus y square plus z square, comma, second solution was lx plus my plus nz equal to 0. This is my final solution, ठीक है। Now next, question number 10. Equation number 10, find the general solution of, find the general solution of equation है example number 10, find the general solution of, instead of writing general solution you can write only solution also, ठीक है। उसको सॉल्व करना मतलब ही उसकी, उसको कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ, उसको उसके डिफरेंशियल टर्म्स को रिमूव करना वहां से, ठीक है। ऑफ इक्वेशन है x into z square minus y square into dou z by dou x plus y into x square minus z square
into dou z by dou y and equal to z into y square minus x square. ठीक है, सो सबसे पहले काम क्या करना है, अगर आपको एमसीक्यू भी आता है इसी पेपर का, अगर मान लो कि आगे चल के अगर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि एमसीक्यू पैटर्न में आपके पेपर लेने हैं, तो एक आध इक्वेशन दिया हुआ होगा, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछेंगे आपको, दैट व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस लैग्रेंजेस इक्वेशन। ऐसे कोई इक्वेशन दिया होगा, उसका क्या करना है, आपको पी क्यू आर की वैल्यू कंपेयर करनी है और वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी से आप फॉर्म करते जाओ और उसके सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढते जाओ। ठीक है, बहुत कुछ पूछ सकते हैं एक ही क्वेश्चन में आपको, तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। वैसे मेथड तो हम सारी ले ही रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सो इसको रिप्लेस कर देंगे p से, स्मॉल p से, इसको q से, और इक्वेशन को फिर से रिराइट करेंगे, x इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू स्मॉल p प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू स्मॉल q इक्वल टू z इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So what is the value of capital P? Capital P is nothing but the x into z square minus y square. What is capital Q? Uh, it is y into x square minus z square. And what is capital R? It is z into y square minus x square. Y square minus x square. Now we write its auxiliary equation. Auxiliary equation. So auxiliary equation is what? Dx upon p, dy upon q, and dz upon r. So its auxiliary equation we get dx upon x into z square minus y square equal to dy upon y into x square minus z square and dz upon z into y square minus x square. Understood? Now first set of multiplier. First set of multiplier, I use x, y and z. x, y, z. ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा? each fraction equal to dx upon x into z square minus y square है, equal to dy upon y into x square minus z square है, dz upon z into y square minus x square है। तो सेट ऑफ मल्टीप्लायर अगर यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? x dx प्लस y dy प्लस z dz, x y z, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट को तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर से जेड स्क्वायर को और ये वाई स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अंडरस्टूड? और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा? ये प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे भी लास्ट में z से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर
minus z square x square. Now this plus minus plus minus plus minus, this becomes 0. This becomes 0. And here you get first solution, x dx plus y dy plus z dz equal to 0. And when you integrate, on integrating you get its integration is x का integration क्या, x square by 2, y का integration क्या, y square by 2, और z का integration क्या, z square by 2 equal to c1 upon 2. ये भी 2 ले लेते हैं. And by taking 1 by 2 taking common, you can cancel from both side and you simply get. अब आप पूछेंगे कि मैडम ये c1/2 लेना ही जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं लेना चाहते हो तो मत लो. यू कैन टेक सिंपली c1 देयर. ठीक है, c1. And this is your first solution. This is your first solution. ठीक है, अभी एक 3 मिनट बाकी है. मैं आपको नेक्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स बता देती हूँ. सेकेंड set of multiplier for second solution is 1 by x, 1 by y and 1 by z. Sorry, 1 by z. 1 by z. अभी क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे x x से मल्टीप्लाई कर दिया था, y y से मल्टीप्लाई कर दिया था, z z से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसी जगह पे क्या करेंगे, dx को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन x, मतलब ये हो जाएगा dx अपॉन x. और जो नीचे में जो ये एक्स्ट्रा x है, ये x x कैंसिल हो जाएगा. वैसे ही dy अपॉन y हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा y है वो y y y कैंसिल हो जाएगा. एंड सिमिलरली फॉर z ऑल्सो. ये सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आया तो मैं कल बताऊंगी आपको. कल का जो लेक्चर है, कल मॉर्निंग में सवेरे 9 बजे होगा लेक्चर. ठीक है.